Good morning, everyone. Okay, in the last session, we were discussing about Proc SQL, right? And the thing which we need to cover today is the joins, right? So we have covered the basics of Proc SQL. Okay, I think we have covered up to update, right? Not the alter table. Okay, thank you, Aga. So alter table help me to modify a table. So why you need to alter a table? So at times when you are creating a data table, you have given a certain length or certain data type to your variable. So for example, let me create a data table. New table, okay. So we have this new table, right? And in this new table, for example, we have these 5 variables, right? And let's say age. I want to add, so before altering it, let me just show you the data type. For my new table. So now this name variable have a variable type as character with a length of 8. Now if you want to alter this, you are expecting that new data which you are going to insert might have a longer length, right? So you can change this with the help of alter table command. So the syntax is proc SQL, no print because I don't want an output of this alter table, new table, and what need to be modified? We are modifying the name variable, and the modification is required varchar. This is data type for SQL. All right. Now let me run the proc content again.
So do you see that now the length has changed from 8 to 10? Yes. So basically, Akash, it helps me to change the structure of a data table. Oh, this also helped me to drop a particular column. It helped me to add a particular column like this. Sorry, that table name is not there. So I have column like a status one. No, variable character. So in SQL, we have this functionality that we can have variable character, which means it will take it to so it help me to save space. So वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब आकाश ऐसा है कि जैसे जितना कैरेक्टर होगा उतना ही स्पेस लेगा वो. नो सिम न्यूमेरिक है. You can use it to drop a column. Okay, table is not there. We have few more good command in SQL like proc SQL count. So this count help you to give you the number of rows 19, right? And count with distance help you to see how many unique item are there or how many unique values are there in a particular variable. 6. So you have 6 unique age. Now we are going to discuss about the join. So we are using our old example, which is we have used previously during merge. Right? So my data that it has code and it has sales. The second data which is for code, name and description. किसकी बात कर रहे हो आकाश?
So, like नहीं, सो आकाश ऐसा नहीं है यहाँ, ये ना डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, ऐसा कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है। सो दो चीजों को अलग समझो। ये जो एसक्यूएल है ना, ये डेटा गैदर करने के लिए आपको ज्यादा यूज करनी है, इससे कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो आप, कैसे करोगे वैसे करोगे। Right, so I think you have this data, right? So how to join two tables is very simple. Select save dot star में sales table और star में सारे कॉलम, description वन dot star में description वन टेबल और उसके सारे वेरिएबल। And from table name 1, table name 2. So you will get a Cartesian product, right? What is a Cartesian product? Anyone? Can anyone explain this output? So to join two table, we need to write table name followed by variable name. So variable name पे हमने लिखा है स्टार मतलब सारे वेरिएबल, table name, then another variable name, again a star means all variables from this table and from table 1 and table 2. Now this is the output of this command. So can you explain कि join कैसा हुआ है? ये पहले आपके टेबल के दोनों वेरिएबल है, ये बाकी तीन वेरिएबल दूसरे टेबल के हैं। आउटपुट समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ निष्कर्ष। सर मैं ये तो रो वाइज ज्वाइन हुआ है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, तो आपने प्रॉक एसक्यूएल यूज किया है ना सर? हाँ उससे पहले आपने इनप्रिंट ई का यूज किया, तो सर वो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मतलब प्रॉक एसक्यूएल और इनप्रिंट ये अलग जैसे कमांड है ना, ये सब कैसे मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे क्या यूज होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करोगे? वो सर
proc SQL लिखा था आपने, हाँ उससे पहले आपने लिखा था proc imprint का यूज किया था शायद, तो प्रॉक ये एसक्यूएल ही लिखा है। उससे पहले imprint लिखा था, मतलब ऊपर कौन सा? उससे ऊपर जो कोड कराया था उसका imprint कहीं लिखा था आपने, प्रिंट प्रिंट करने, हाँ ये नो नो प्रिंट, ये हाँ proc, तो ये सब मतलब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। नो प्रिंट का मतलब नो प्रिंट, प्रिंट नहीं चाहिए। proc SQL मतलब proc SQL का मतलब क्या है सर यहाँ पे? SQL क्यों लिखा हुआ है आपने? कि SQL की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं इसलिए? नहीं सो नो को इसको हटा कर प्रिंट करके देख लो, अपना समझ में आ जाएगा। सॉरी, दो प्रिंट से प्रिंट नहीं आएगा। मतलब ठीक है सर, लेकिन proc में आपने आगे SQL यूज किया हुआ है, वो क्यों किया है हाँ सर? वो उसी के थ्रू तो कर रहे हैं सारा काम। SQL के थ्रू? हाँ प्रॉक एसक्यूएल के थ्रू तो अल्टर टेबल और ये सारे कमांड एसक्यूएल के थ्रू ही तो किए हैं। अपडेट इंसर्ट ये सारा कुछ एसक्यूएल से तो किया है। तो SQL यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, कुछ यही करना है? डेटा स्ट्रक्चर में भी हो सकता है बट थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा वो। अच्छा, तो SQL ही जो है इजी है और इसको यूज करना है? हाँ तो डेटा टेबल को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल इज बेस्ट है। डेटा क्वेरी करने के लिए एसक्यूएल बेस्ट है, इसलिए तभी तो सैस ने अपनी प्रोग्रामिंग छोड़ के एसक्यूएल को अपनाया। ओके, ठीक है सर। वो सर जो आप करा रहे थे उसमें से रो वाइज ज्वाइनिंग हुई है? रोवाई ज्वाइनिंग हुई पर कैसे हुई है? रो वाइज मतलब इंडेक्स वाइज हुई है सर? तो अगर आप गौर से पहले देखोगे टेबल वन का एक रो टेबल एक कोड टेबल टू के सारे कोड के साथ ज्वाइन हुआ पहले, फिर सेकंड फिर से सबके साथ, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके सर, कार्डिशन ठीक है ना? कोड। नाउ नेक्स्ट इज योर इनर जॉइन। जॉइन से आता सबको। So command is like select sales dot star, मतलब मैं सारे कॉलम ले रहा हूँ इस टेबल से, कॉमा डिस्क्रिप्शन वन डॉट डिस्क्रिप्शन, इस टेबल से सिर्फ ये वाला कॉलम ले रहा हूँ फ्रॉम सेल्स, और सेल्स पे इनर जॉइन लगा रहा हूँ इस टेबल पे ऑन सेल्स डॉट कोड इक्वल्स टू, यस हाँ, तो वो मर्जिंग एसक्यूएल में, ओ सॉरी सैस में उसको मर्जिंग बोलते हैं, एसक्यूएल में उसको जॉइन बोलते हैं। ये आपका इनर जॉइन आ गया 6। Then we have full join. Now we have changed a little bit. तो हमने क्या किया, सिंटेक्स सिलेक्ट में सारे वो कॉलम लिखे हैं जो चाहिए हमें, राइट? तो सेल्स डॉट स्टार्ट में सेल्स के साथ दोनों कॉलम, जो ये सारे कॉलम, डिस्क्रिप्शन टेबल से सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए फ्रॉम सेल्स, पहली टेबल लेफ्ट टेबल। नाउ वी वांटेड इनर जॉइन ऑन सेकंड टेबल, दिस टेबल ऑन sales dot com dot code sorry equals to description dot my code. This is your common variable in both the table.
तो आपका कोड और सेल्स तो आ गया पहली टेबल से, डिस्क्रिप्शन आ गया थर्ड सेकंड टेबल से सिर्फ। क्लियर हुआ आकाश? हाँ, एस जो ये कमांड है, अगर proc SQL और क्विट हटा दो तो आप इसको SQL पे भी रन कर सकते हो। नाउ फुल जॉइन अगेन, a डॉट स्टार कॉमा b डॉट स्टार। अब ये a और b क्या है? सो वी जनरली यूज एलियस नेम फॉर टेबल्स, क्योंकि अभी तो ये छोटे छोटे नाम है, बट एक्चुअली डेटा टेबल्स बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, तो वो पूरा नाम बार बार लिखने से अच्छा हम उनको एक एलियस नेम दे देते हैं उनके आगे, लाइक a डॉट फ्रॉम सेल्स a। तो सेल्स टेबल का नाम क्या हो गया? a हो गया। डिस्क्रिप्शन b, तो डिस्क्रिप्शन टेबल का नाम क्या हो गया? b। तो अब मैं इनको डायरेक्ट रेफर कर सकता हूं, तो सिलेक्ट a डॉट स्टार कॉमा b डॉट स्टार फ्रॉम सेल्स a, फुल जॉइन डिस्क्रिप्शन 1b on a dot code and b dot my code। एक मिनट दे रहा हूं। So when you run this, you will get a full join। फुल जॉइन मीन्स सारे टेबल के सारे डेटा पॉइंट के वन टू वन मर्जी। ये ब्लैंक क्यों है? Not common, yes. And similarly, this is also blank because it is not in second table. Now left join. Pretty simple. You need to use a keyword left join, that's it. आउटपुट क्या आएगा इसका? एनीवन? कितनी रो का डेटा आएगा? विदाउट रनिंग, अगर बता सकते हो तो याद करो। जो मैंने डायग्राम्स बना के आपको समझाया था। लेफ्ट जॉइन, नॉट लेफ्ट आउटर। आकाश वो लेफ्ट आउटर था। यस, 7। बाकी आप रन करके बताओ if you see any challenge। ये क्यों किया ये आपको पता? Again, this is same logic which we have used in merging।
Yes. Done. So where b dot my code is null, why? लेफ्ट आउटर के लिए बी, अगर आपको ये वाला टेबल याद है, यस, सो ए एंड बी, और बी जीरो कहाँ होगा, नल कहाँ होगा, बी इस जगह पे नल होगा। सॉरी, now right outer, and again I am leaving this for you to complete full outer join. You need to complete this code full outer join वाला, where कंडीशन लिखनी है उसकी। लिखा किसी ने? Just share in the chat box. ये काम नहीं आएगा यहाँ पे आकाश।
thing on this line. मिला किसी को आंसर? So Kanishka, we have been covering this Proc SQL, and we have covered all the joins. So the last join which I want you to write code is for full outer join. तो जैसे हमने लेफ्ट आउटर के लिए लिखा where b dot my code is null, राइट पे लिखा where a dot code is null. On the same line, I want you to write a code for, or this line for full outer join. So the full outer join is a dot code is null or b dot my code is null. So आकाश, यहाँ तक क्या होगा फुल जॉइन पे? फुल जॉइन पे लेट मी
सो पहले काउंट से फुल जॉइंट हो जाएगा, राइट? जहां मैंने वेयर कंडीशन लिखी हुई है ना, वेयर, आई एम राइटिंग ए डॉट कोड इज नल, which means this area, and b dot code is null. It is this area. नल कहाँ है समझ नहीं आया। ओके, तो लॉजिक वही रहेगा आकाश, जो हमने लास्ट टाइम पे बात की था ना, वही। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, राइट? तो दिस इज कॉमन एरिया, this is the area where a is null here, a की कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नल होगी यहाँ पे, and this is that area where b के भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नल होगी। Now in that program what I have written, मैंने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, राइट? और उसमें सिर्फ ये दोनों एरिया, ये दोनों चीजें मांगी। क्लियर? All right, so that's it on proc SQL. Now the next thing which I'm going to start is macro, right? Okay, this is not required in this. Yes. So not SQL in SAS is over, right? SAS के एडवांस मॉड्यूल के अंदर SQL इतना ही है। So as I told you कि मैं बेस और एडवांस SAS के दोनों मॉड्यूल कवर कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर
SQL or macro. These two things falls under advanced SAS. Okay. So macro किसी को पता है macro क्या होते हैं? आप इस ग्रुप में लोगों को बताया था ना आप लोगों ने कि आपको तो प्रोजेक्ट मिल चुका है. किस किस को नहीं मिला प्रोजेक्ट? एक सेकंड दो मेरे को. किस किस को प्रोजेक्ट असाइन करना? आकाश आप दोनों को तो फिर असाइन नहीं करो क्योंकि आप दोनों का तो अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? तो निष्कर्ष कनिष्का एंड मोहित आपको भी देना है. अच्छा भेजा है मोहित. लेट मी चेक, गिव मी अ सेकंड. शायद मेरे से आदित्य, इफ अगर आप हो तो एक बार वापस से मेरे को मेल कर दोगे. आदित्य है ही नहीं. आप में से कोई वापस से ईमेल कर देगा मेरे को आदित्य वाली? Probably I might have missed. मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को प्रोजेक्ट, है ना? हाँ निष्कर्ष टैबलू बचा हुआ अभी, लेकिन प्रोजेक्ट आपको आर या पाइथन में से इसी पे करना है. सैस कल कंप्लीट हो जाएगा.
Yes. If so, Akash, I am not sure about whether it is is there any separate module for SQL, but I am covering SAS, so I am covering it from that perspective only. तो आकाश, अगर ऐसा कुछ है तो एक काम करते, मेरे को आज दो, मैं बात करके बता करता हूँ, है ना? Okay, guys. All right. So macro, right? So macro, Kanishka told that okay, there's something to automate, right? और ऐसा कोई है जिसको VB वाला मैक्रो पता है, एक्सेल वाला मैक्रो किसी को पता है? ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। Alright? So SAS का जो मैक्रो है, that is to automate SAS program only. लेकिन VB में आप बहुत कुछ एडिशनल कर सकते हो। So there, जब when I say SAS के macros, so there are two part of it. One is complete program को automate करना, alright? पहला चीज है complete program को automate करना, दूसरा चीज है किसी variable को automate करना। Alright? तो पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे how to automate a particular variable. और उसके लिए right, there are three different methods in SAS, right? So the first method is %leg, right? So the first method of creating an automated variable is %leg. With the help of %leg, we can assign any value or automate. Okay. चलो एक ऐसे चलो। So आकाश क्या है कि चलो मेरा एक ये प्रोग्राम है, प्रॉक प्रिंट डेटा, ये एक मेरा प्रोग्राम है, ठीक है? और इस प्रोग्राम को जब रन करता हूं तो मेरे को मेल का डेटा मिलता है, राइट? ये छोटा सा प्रोग्राम है, बट अगर मान लो ये बड़ा प्रोग्राम होता और उसमें कई जगह पे एम यूज हो रखा होता तो मुझे हर जगह अगर एम चेंज करना पड़ेगा, राइट? उसमें गलती होने के चांसेस भी है। अब मेरे कुछ ऐसी जरूरत है कि मेरे को ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। तो अगर मान लो ये 5 जगह लिखा होता तो मेरे को हर बार
5 जगह जाकर के ये एम चेंज करना पड़ता है और कभी हो सकता है वैसे कुछ गलती भी रह जाए। मेरा दूसरा मैनेजर आता है, वो मेल की या फीमेल का डेटा मांगता है, राइट। मैं इन दोनों के चक्कर में कभी किसी को गलत डेटा भेज देता हूँ, कभी किसी और को गलत डेटा भेज देता हूँ। अब इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए कि मेरे को मेल और फीमेल ना बार बार ना लिखना पड़े, मैं एक ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम मैंने नाम दिया XYG। क्या नाम दिया? XYG। परसेंट लेट किस लिए यूज होता है? इस XYG को डिफाइन करने के लिए। फिर इस XYG की कुछ वैल्यू होगी जिस फी में F लिख दिया मैंने इस केस में, राइट। सो ये हो गया मैक्रो डिफाइन करना, राइट। ये हो गया मैक्रो डिफाइन करना। जब मैक्रो डिफाइन किया तो मैक्रो कॉल भी करना होगा। तो उसको कॉल करने के लिए जहां पे भी हमें इसको रिप्लेस करना है वहां पे इसको लिखेंगे प्लस इससे पहले M% का सिंबल लगा देंगे। M% से क्या होगा? ये इंस्ट्रक्शन लगेगा कि ये मैक्रो वेरिएबल है, इसको कॉल किया गया है। तो अभी जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो नाउ अब ऑटोमेट क्या किया मैंने? ये वाला पोर्शन ऑटोमेट कर दिया। अब मेरे को कहां पे चेंज करना है? इस जगह पे। मेरे को अपने ओरिजिनल प्रोग्राम को अब छेड़ने की जरूरत नहीं है। This is the simplest example which I have taken, right? आप भी बोल सकते सर इतने से काम में कौन सी बड़ी भारी गलती होने वाली है। ये परसेंट लेट और M% का मतलब समझ में आया? राइट। हाँ, मैं इसको ग्लोबल इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसके जो बाकी दो तरीके हैं ना वो फिर ग्लोबल नहीं सुनाई देते इसको, ठीक है ना, इसलिए। चलिए अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने एक परसेंटेज ABC करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 12 लिखा, परसेंटेज DF लिखा है। कभी भी मैक्रो वेरिएबल बनाना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है पहले अपना प्रोग्राम नॉर्मल सेस लैंग्वेज में लिखना। Where age is greater than let's say 12 and gender is equal to let's say male। पर मेल ऐसा लिखेंगे नहीं, मेल हमेशा कैसे लिखोगे कोर्स के अंदर? जब ऐसा लिख लो देन ओनली यू रिप्लेस योर वैल्यू ऑफ मैक्रो वेरिएबल इन योर प्रोग्राम। तो उससे क्या होगा, कभी ये गलती नहीं होगी। अगर कोई वैल्यू आपको कोर्स के अंदर डिफाइन करनी है तो कभी आपसे वो गलती होगी नहीं कि आप उसे कोर्स पर नहीं डिफाइन करोगे। ठीक है, लेट मी रन दिस। नाउ इफ समवन आस्क यू टू चेंज योर वैल्यू, राइट, कि सिर्फ ये चेंज करना है। ओके हाँ, आकाश इसमें क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने ना, अगर मेरे को ये वाला वेरिएबल कोर्स के अंदर लिखना था क्योंकि जेंडर क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल है। तो आप पहले अपना प्रोग्राम नॉर्मल बना लोगे ना तो आपसे ये गलती होगी नहीं। मान लो इसको आप फिर ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे, सॉरी थोड़ा
तबीयत ढीला है मेरा आज, इसलिए बार बार। थैंक यू। तो ये रीजन है कि पहले आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो, फिर आकर के वेरिएबल को चेंज करो। तो कहीं कोट्स लिखना है, कोट नहीं लगाना है, वो सारी गलतियां नहीं होंगी इस केस में। नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं आने वाला, वो सिर्फ इसलिए कि गलती ना हो उसके, उससे बचने के लिए। अगर आप उसमें कोट्स नहीं लगाओगे तो ये कैरेक्टर डेटा है, विदाउट कोट्स के कैरेक्टर डेटा रीड ही नहीं करेगा। अगर इसमें कोट्स नहीं लगाओगे तो एरर आएगी ना, क्योंकि फीमेल या मेल अगर कोट से तो रीड होगा नहीं। नहीं, ऊपर ओके, ऊपर कोट्स लगा दोगे फिर नीचे जरूरत नहीं है। यस, और इसीलिए मैंने यहाँ पे कोट्स नहीं लगाए, ताकि डेफिनेशन के टाइम पे आप कुछ भी डिफाइन करो, राइट। सेकेंड चीज, मैक्रो वेरिएबल में एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, और आपका मैक्रो वेरिएबल हमेशा जो स्टोर होगा वो उसको आपको देखना है, तो आप उसको परसेंट पुट करके देख सकते हो। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। परसेंट पुट % ABC, जब आप इसको ऐसे रन करोगे तो इसकी वैल्यू आपके लॉग में आ जाएगी। As many as you can. सो ओके, इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है प्रिंट होकर के। M% का वैल्यू क्या है, 13। उसी तरह से अगर आप परसेंट पुट तो ये वैल्यू आ गया फीमेल। तो आपका वैल्यू स्टोर हो गया, परसेंटेज के द्वारा परसेंट पुट से आपने चेक कर लिया, एंड M%। सो ये एक तरह से ना आकाश, ये आप अपने मैक्रो वेरिएबल को प्रिंट करा करके देख रहे हो लॉग में।
कि ये जनरेट बना कि नहीं बना। इसको आउटसाइड किसी प्रोग्राम के आप कॉल करके देख रहे हो। ठीक है, वैसे कुछ जैसे ना ये अभी यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है जो अभी हमने बनाए, वैसी सैस के अंदर कुछ ऑटोमेटेड वेरिएबल्स भी हैं। सो वैसे कुछ वेरिएबल्स का नाम है एम्परसेंड सिस डेट 9, एम्परसेंड सिस टाइम, सिस डे। ये क्या होगा, सिस्टम के डेट टाइम्स और डे है। लेट मी शो यू। 28 नवंबर 5:20, ये वहां के सर्वर का टाइम है, ये हमारा टाइम नहीं है। जिस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है ना उसका टाइम है, और दिन सैटरडे है। तो ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, राइट। ये हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। कॉल किससे कर रहा हूं मैं उनको, परसेंट पुट से। ये बात क्लियर हुई, परसेंट लेट और परसेंट पुट समझ में आया। ओके, एनी क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन टू द अनदर मेथड। एक काम करो, जल्दी से 5 मिनट का ब्रेक लेके आओ। इट इज 12:07, लेट्स मीट एट 12:12।
Welcome back. So the second method, give me a second, let me just make this. I think must be hearing some background noise. Okay. So the second method of defining a variable is through calls input. So let me give you a context or a scenario how or when we can use this. So for example, there is store, right, which says flower, right? Now the CEO of this company want to know, or the salesman want to know who's buying, right, the product in the highest quantity or in the largest quantity, sorry, and which particular item is selling much. प्रिंट कहाँ हुआ? ये आउटपुट डेटा में आता है ये। सो सैस स्टूडियो के अंदर ये उन्होंने सेटिंग की हुई है कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी डेटा, वो आउटपुट डेटा बना दिखा देते हैं आपको। प्रिंट का रिजल्ट हमेशा डेल्टा में आएगा। So you have customer ID, you have sales date, you have variety, you have quantity. Now your sales manager want to know किस कस्टमर ने किस चीज की सबसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज की, राइट? और उस कस्टमर ने इसके अलावा और क्या क्या परचेज किया। तो कैसे करोगे? भूल जाओ आप कोई प्रोग्रामिंग जानते हो, अगर मेरे को आप स्टेप बाय स्टेप बता सकोगे कि कैसे निकाल सकते हैं डेटा, अगर ये एक्सेल पे देता हूं आपको तो कैसे निकालते हैं? सैस के थ्रू तो हम थोड़ी देर में कर लेंगे, बट ऐसे समझाओ कि क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हैं इसको। सो मेरा क्वेश्चन है कि आपको, अच्छा ये नंबर डेली चेंज होंगे, आपको ये पता कैसे लगाओगे कि किस कस्टमर ने किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज की और उसने और क्या क्या परचेज किया। तो क्या स्टेप बाय स्टेप करोगे? अगर एक्सेल में करना होता तो, या नॉर्मली कर रहे होगे तो कैसे करोगे?
ओके, सो कई तरीके हो सकते हैं, राइट, इस चीज को अचीव करने के, क्योंकि लॉजिकल कैसे डेवलप कर सकते। सो द वे आई डेवलप दिस लॉजिक इज, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वांटिटी क्वांटिटी से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। हो गया। अच्छा, मैंने ये रन ही नहीं किया इससे पहले वाला, क्या किया तो है। तो अभी, और जो सबसे टॉप मोस्ट जो सेल होगी वो टॉप पे आ जाएगी, राइट। उस टॉप मोस्ट क्वांटिटी का मैं अगर ये कस्टमर आईडी कैप्चर कर लूं, राइट, तो मैं बाकी डिटेल्स भी निकाल सकता हूँ। सो व्हाट आई डिड, मैंने इसको सेट किया इस वैल्यू को, और पहली रो रीड कर ली सिर्फ। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करने के बाद ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो अगला मेथड में यूज करने वाला हूं ऑटोमेटिक वेरिएबल क्रिएट करने का, वो सिर्फ, जैसे मैंने पहले बताया कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है एक वेरिएबल की, तो एक ही वैल्यू, इस वेरिएबल की एक ही वैल्यू चाहिए होगी मेरे को स्टोर कराने के लिए, एंड दैट मेथड इज कॉल्स इनपुट। तो इसको सिंटेक्स को समझते हैं। मैंने बोला डेटा अंडरस्कोर नल अंडरस्कोर, मतलब कोई डेटा नहीं बनाना। सेट रीड कहां से करना है, न्यू वन से करना है मेरे को। कॉल्स इनपुट ऐसा कीवर्ड है, फॉलोड बाय टॉप नेम ऑफ द वेरिएबल, जो आपको नाम अपने वेरिएबल का रखना, जैसे पहले आपने XYZ रखा था, ABC रखा हुआ था, उसी तरह से। ठीक है, और उसके अंदर में स्टोर क्या कराया, वैरायटी कॉलम। तो वैरायटी कॉलम में क्या है, हेलिकोनिया, कॉल से बुक कस्टमर नेम, तो क्या स्टोर कर रहा है, कस्टमर आईडी। टॉप क्वांटिटी के अंदर आप क्या स्टोर करा रहे हैं, क्वांटिटी। तो सारे, ये हो गया आप मैक्रो वेरिएबल का नाम, और ये वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यू आपको इसके अंदर स्टोर करानी है। तो इसको जब रन करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, राइट। मेरे मैक्रो वेरिएबल बने या नहीं बने उसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, परसेंट पुट, तो 600 356 स्टोर हो चुका है ना। और उसके बाद क्या करूंगा मैं, proc print data equals to flower sales where customer ID is equal to % customer name। तो इसने जो कुछ भी खरीदा वो सारा आ जाएगा एक साथ ही, लाइक दिस।
चलो एक बार वापस से रिपीट करता हूँ मैं एग्जाम्पल को, राइट। करना क्या है कि वी नीड टू क्रिएट एन प्रोग्राम जहां पे मुझे एक पर्टिकुलर स्टोर के अंदर जो परचेज हुई है उस स्टोर के अंदर किस कस्टमर ने किस आइटम को सबसे ज्यादा खरीदा, प्लस उस आइटम के अलावा उसने क्या क्या और परचेज किया, वो इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट हेड को पास ऑन करनी है, राइट। अब अगर यही काम को एक्सेल में करना होता तो कैसे करता है, पूरा डेटा एक जगह पे होता है, उसको कॉपी, उसको सॉर्ट करता, जो पहला नंबर आया था उसकी कस्टमर आईडी देखता और उस कस्टमर आईडी के बेसिस पे पूरे डेटा को फिल्टर कर लेता, ऐसे ही करता ना। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए हम सैस के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने डेटा को सॉर्ट किया, जो सबसे टॉप रो आई उसको मैंने अलग से डेटा में स्टोर कर लिया। क्यों किया, क्योंकि मेरे को उस पर्टिकुलर रो के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो वेरिएबल में स्टोर कराना है विद द हेल्प ऑफ कॉल्स इनपुट। तो टॉप वैरायटी ये हो गया मैक्रो वेरिएबल का नाम, और ये उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू मुझे टॉप वैरायटी में स्टोर करानी है। कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, टॉप क्वांटिटी, क्वांटिटी। चूंकि इसके अंदर एक बार में एक वैल्यू स्टोर होती है, इसलिए हमने यहाँ पर पहली रो को पिक किया और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा लिया। ये क्लियर हुआ। अब मान लेते हैं दूसरा कोई लॉजिक बनाएंगे। देखो मैं बता देता हूँ, प्रोग्राम तो बाद में लिख लेना। तो वही क्या करूंगा आकाश, मैंने जब ये कस्टमर निकाल लिया, फिर अगला डेटा बनाऊंगा जिसमें से ये सारे कस्टमर, ये वाले कस्टमर का डेटा उड़ा दूंगा। ठीक है, अब जो डेटा बचा उसमें से जो टॉप मोस्ट कस्टमर होगा उसका डेटा निकालूंगा, वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर हो गया। अगेन दिस इज वन लॉजिक, कोई और दूसरा लॉजिक भी बन सकता है, ऐसा नहीं बोला कि जो मैं बोला वही लॉजिक ठीक है। मेक सेंस? आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये है। अब मान लेते हैं कि इसका फायदा क्या है, बताता हूँ फायदा भी थोड़ी देर में। ये मैंने भी आपको बता दिया एक मेथड, सेकंड मेथड है इसका प्रॉक एसक्यूएल के थ्रू। जैसे अभी कॉल्स इनपुट मेथड सीखा हमने, ये मेथड सीखा, वैसे एक और मेथड है एसक्यूएल के थ्रू, सेम लाइन पे काम करता है वो भी, तो उसको भी समझते हैं। तो प्रॉक एसक्यूएल select customer ID into कोलोन mcust। तो इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट वो वाला वेरिएबल जिसकी वैल्यू स्टोर करानी है इनटू मैक्रो वेरिएबल का नाम फ्रॉम
जो सिंगल लाइन वाला डेटा हमने लिया था उसमें से। Select variety into colon m item from new one. Select quantity into mqdy from new one. तो ये वैल्यूज आ गई कस्टमर आईडी, $356 हेलिकोनिया 600, ये वैल्यू स्टोर हो गई इनके अंदर। अब जहां मर्जी कॉल कर लो इनको, ठीक है। आप समझते हैं इसका फायदा। अभी तक आपने देखा कि मैंने सिर्फ मैक्रो वेरिएबल्स ऑटोमेट किए। अब उस इन मैक्रो वेरिएबल के बेसिस पे आप पूरा प्रोग्राम भी ऑटोमेट कर सकते हो। So let me have this data first. एक मिनट फाइल ढूंढ लेता हूँ जो ये फाइल मेरे बनाई हुई है। चलो कोई नहीं, बना लेते फिर इसको एक और में। मंडे में उसको रिलेटेड आपने फाइल सेव की और इस फाइल को मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा।
अभी तक मैंने आपको समझाया कि हाउ टू मेक अ मैक्रो ऑटोमेटिक मैक्रो वेरिएबल, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक अ मैक्रो प्रोग्राम. सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, जो मैंने फाइल का पाथ लिया हुआ है, ये फाइल अभी आपके यहाँ पे, ये फाइल डेली अपडेट होती है, राइट? और ये इस पाथ से आपके हर स्टोर वाला इसके अंदर डेटा स्टोर कर देता है. आप यहाँ से फाइल पिक करोगे, राइट? फाइल को रीड करोगे, उसको सॉर्ट करोगे, पहला लाइन उठाओगे, उस लाइन में से मैक्रो वैल्यू आप स्टोर कराओगे और उसको आप प्रिंट करा लोगे, राइट? अब मान लो अगले दिन आते हैं, आपका ये डेटा क्या होता है, ये चेंज होकर जाता है, ये हो जाता है 650 हो जाता है. मैं इसको एडिट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा लगता है. चलिए कोई बात नहीं. यही डेटा भी चेंज होकर के, मतलब अगले दिन आता है और ये डेटा चेंज होकर के ये हो जाता है 850, राइट? तो फाइल अपलोड करनी होगी, वो 850 वाली फाइल अपलोड करेगा, राइट? आप वापस से प्रोग्राम रन करोगे, तो आप 850 वाला आपका ऑटोमेटिकली पिक हो गया, राइट? अब इस पूरे प्रोग्राम को भी ऑटोमेट करने के लिए आप क्या करोगे, इस सारे प्रोग्राम के ऊपर लिखोगे परसेंट मैक्रो और उस मैक्रो का नाम, जो भी आपने नाम देना चाहते हो. तो मैंने लिख दिया डेली अंडरस्कोर रिपोर्ट. मैक्रो चालू हुआ और लास्ट में मैक्रो को मैंने क्या कर दिया, परसेंट मैक्रो एंड, एम एंड मैक्रो एंड, और उसी नाम से डेली अंडरस्कोर रिपोर्ट. अब मैं इसको रन कर दूंगा इस पूरे प्रोग्राम को, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक मैक्रो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. अब इसको रन करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली क्या रन करना होगा, परसेंट डेली रिपोर्ट. आपकी फाइल फिर से चेंज हो गई, ये फाइल थी ना अभी, आपको कितना प्रोग्राम रन करना है, सिर्फ एक लाइन. तो आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम को ऑटोमेट कर दिया.
समझ में आया? Yes or maybe? Okay. तो so this is about your macro वेरिएबल एंड मैक्रो। कुछ प्रोग्राम और भी करेंगे कल हम इस पे, या पूरा प्रोग्राम ही शुरू से हम मैक्रो पे ही बनाएंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन बिफोर? आज थोड़ा जल्दी रैप अप इसलिए करो, थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अगली क्लास से थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ। 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा मेरे को। 101 फीवर है बस। बिल्कुल आकाश, कुछ करते हैं कल को, जब केस स्टडी करेंगे ना, तो उसमें परसेंट मैन का मतलब है निष्कर्ष, परसेंट मैक्रो एंड, एम एन का मतलब मैक्रो एंड। परसेंट इसलिए लगाते हैं ताकि ये बता सके कि ये मैक्रो है। प्रैक्टिस करना, एंड कुछ क्वेश्चन हो तो कल मेरे से पूछ लेना इस पे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल।